Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. If the body is projected vertically upward with velocity u, then the time taken by it to reach at its maximum height. तो सवाल है ये बच्चे के दिमाग में कि what time will it take? तो टीचर बोलता है कि yes, do you mean time of ascent? If it is, then that lady or that girl saying yes it is because she is not remembering that particular word, and therefore time required to reach at its maximum height is called as time of ascent. Then what will you call the time taken by it to fall down? That time is called as time of descent. What is that? It is time of descent. Yes, it is very nice. So here time of descent, the time taken by it to reach the ground from certain height is called as the time of descent. So now question is, what will you call the time in which the object remain in air? So this time is called as, what is it? It is called as time of flight. No? So if it is, then you are really expert. You are studying it very well. Do remember these things. Time taken by the body to reach the ground or to cover the vertical distance in downward direction is called as the time of descent. मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने के लिए जितना समय लगता है उसे टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं. एंड द टाइम इन विच द बॉडी रिमेन्स इन एयर is called as time of flight. But what is formula for the time of ascent? What is the formula for time of descent? What is formula for time of flight? So here time of ascent is u by g, while time of descent is also u by g, but time of flight is equal to twice u by g. So here time of flight is double than time of descent, time of double than time of ascent. Time of flight is double than time of ascent as well as double than time of descent. Now we have one ball and one bullet is in this pistol. So how high will it go? कितना दूर जाएगा ये किस बात पर डिपेंड है? क्या मास पे डिपेंड है? तो देखेंगे हम लोग किस बात पर डिपेंड है. ये बॉल ऊपर फेंक दिया, वो पिस्टल ने भी फायर किया लेकिन ऊपर से नीचा. तो हाउ हाई इज दिस? इज दिस डिफरेंट हाइट ड्यू टू डिफरेंट मासेस? सो दोस्तों ये मास पे डिपेंड नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल वेलोसिटी. हाथ से फेंका था थोड़ी सी स्पीड से और बुलेट से फायर किया ज्यादा स्पीड से, है ना? सो हियर, so what is this height formula then? Formula for this height is equal to, will you tell me? It is, this formula is u square by 2g. H maximum is equal to u square by 2g. The height maximum is equal to u square by 2g. Where from this come? Our third kinematical equation is v square is equal to u square plus 2as. When the body is reaching at maximum height, its velocity is equal to 0. But initial velocity late u and therefore u square as it is. Its value is positive and even there is a square. Now acceleration is negative. So here g is there. Here s is h maximum. If h maximum value or term is taken to left side, then we get, what do we get? We get 2gh maximum is equal to u square and eventually h maximum is equal to u square by 2g. This is how maximum height is directly proportional to square of initial velocity. U square by 2g. 2g is a constant and therefore h maximum directly proportional to square of initial velocity. How will you draw the graph of h maximum versus u square? Next page, and this is what, let y-axis, x-axis, and now let here h maximum and here u square. Will the graph be like this?
like this, like this, or like this. 1, 2, 3, 4. दोस्तों ये ग्राफ है, कौन सा है? ये कौन सा होगा, कौन सा होगा? तो ये ग्राफ है ये वाला। अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में स्लोप कांस्टेंट होता है। h by u square will be constant and this constant is nothing but the slope. Agree? H maximum versus u square is constant and that constant is the slope. So slope will be constant. So graph will be ये है ग्राफ, this one will be graph of h maximum versus u square. Try it. निकालो, चलो जल्दी। Question is, if capital T is the time of flight, then what is the formula for maximum height in vertical motion? Let is our maximum height. Then you know very well h is equal to u square by 2g. Now here capital T is known you, it is 2u by g. Square this term or you will get u from this equation, it is g capital T by 2. Put this value here and you will get h maximum is equal to g square capital T square divided by this 2, its square is 4, this 2g as it is. 1g is cancelled and this becomes 8, so it is 1 by 8, 1g and here gt square. h maximum is 1/8 gt square. तो आएगा टीचर और आंसर देने के बाद बच्चों को समझ में आएगा, यस इट इज, ही विल रिमेंबर नाउ maximum height is equal to 1/8 gt square. Now a question, velocity time graph of a body thrown vertically up, what will be your answer? तुम्हारे नोटबुक में इसका आंसर है, ग्राफ निकाला है, 2-3 दिन डाला उसमें हम लोगों ने। ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। If it is thrown vertically up, then its initial velocity is maximum होती है। जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वैसे उसकी पॉजिटिव वेलोसिटी कम होते जाती है और वो ग्राफ फिर बनता है नीचे निगेटिव स्लोप वाला। मैक्सिमम हाइट पहुंच गया कि उसकी वेलोसिटी हो जाती 0, फिर वो नीचे चले आता, नीचे आने के बाद वेलोसिटी बढ़ती पर नेगेटिव डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में। ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, देखिए। नाउ शेप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप। कम ऑन, व्हाट विल बी द आंसर? हाँ दोस्तों, अब आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप ये देता है हमें वेलोसिटी, और जैसा ऑब्जेक्ट ऊपर जाता वैसे उसकी वेलोसिटी कम होते जाती है, मतलब स्लोप भी कम होना चाहिए। एंड देयरफॉर अगर ये ग्राफ ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो स्लोप पहले ज्यादा फिर कम और फिर गाड़ी रुक गई। अगर नीचे भी आने का ग्राफ निकालना है तो ये हो जाएगा कर्व विथ वर्टेक्स अपवर्ड लाइक दिस। कब? जब ये अपने हाथ में आने तक का ग्राफ निकालना है तब, क्योंकि वेलोसिटी उसके बढ़ती जाती है और लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, तो स्लोप उसका बढ़ते जाता है। ये भी ग्राफ तुम्हारे नोटबुक पे है। सो योर आंसर विल बी सी, योर आंसर विल बी सी।
body is thrown vertically upward with initial velocity 9.8 meters per second. It will remain in air for, yes it is, क्योंकि ये remain in air का मतलब होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u/g। g की वैल्यू यहाँ दिया नहीं है कि 10 ले लो बोल के, इसलिए हम लोग 9.8 ले लेंगे, और u भी दिया है 9.8, सो ये कैंसल एंड हमें आंसर मिलता है 2 seconds. Is it? Now, if a body loses its half of its initial velocity on penetrating 3 centimeters in a wooden block, then how much will it penetrate more before coming to rest? Velocity final is equal to half of this, and here S1 is equal to 3 centimeters. वही वुडन ब्लॉक है तो रिटार्डेशन कांस्टेंट होगा। वी हैव थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2af। v के बदले u है, सॉरी v1 है और v1 हाफ है, इसलिए u स्क्वायर बाय 4, ये इनिशियल वेलोसिटी u, ये रिटार्डेशन कुछ कांस्टेंट, और मेरा s1 वो जो है 3 सेंटीमीटर। तो अगर मेरा 2a(s1) इधर लिया तो ये उधर जाने के बाद माइनस होगा u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 4, दिस बिकम्स 3u स्क्वायर बाय 4। अगर मैं ऐसा ही सोच लूं तो s1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, या मेरे पास दो बातें आ गई। चलो इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ऐसा ही आएगा, यही फॉर्मूला, लेकिन फाइनल वेलोसिटी होती है 0, ये 0, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू, अब u कितनी है, u है u/2, एंड देयरफॉर u स्क्वायर बाय 4 माइनस 2a(s2), हियर 2a(s2) इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 4, डिवाइड दिस बाय दिस और दैट बाय दिस, आइदर ऑर। सो मुझे s2 निकालना है तो मैं ऊपर ही रखूंगा 2a(s2) बाय 2a(s1) इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 4, और ये 3u स्क्वायर बाय 4 है, सो 3u स्क्वायर बाय 4, तो ये 4 u स्क्वायर कैंसल, s1 उधर लेकर जाओ वो तो 3 है, सो s2 इज इक्वल टू s1 by 3, so 3 by 3 is equal to 1 centimeter, and this is why your answer is 1 centimeter. So here you are, your answer is 1 centimeter. Ball is, now next question, a ball thrown vertically upward with an initial velocity of 1.4 meters per second returns in 2 seconds. The total displacement of the ball is, what is total displacement of the ball if it is projected vertically up with velocity 1.4 meters per second? ये तो 0 है, क्योंकि फ्रेंड्स बॉल अगर हम लोग ऊपर फेंकते हैं कितनी क्यों नहीं वेलोसिटी होती, पर ये तो वापस आता ना, वापस आता मतलब डिस्प्लेसमेंट तो 0 होता है। So here displacement is 0. Ready for next? A ball released from a height h touches the ground in t seconds. After t/2 seconds, since dropping, the height of the body from the ground is. If a body is released, then it can reach the ground in a time t seconds. t/2 seconds में कहां तक गया होगा? ओके, वो भी कहा पूछा है, देखो t/2 टाइम, ये पूरी हाइट है, मान लो h, ये जाता होगा मान लो h1, तो ये पूछा गया है वो है h2। फ्रेंड्स h1 प्लस h2 इज इक्वल टू h1 पता है हाफ g t/2 स्क्वायर मीन्स t square by 4 plus h2 is equal to h,
It is half gt square because it is dropped. Half gt square. If this term is taken there, तो h2 होगा half gt square minus 1 by 4 half gt square, है ना। पर ये हाफ gt स्क्वायर कितना होता, वो तो होता है h होता है कि नहीं, कंप्लीट हाइट h। तो हम लोग लिखेंगे इसे h माइनस h बाय 4। तो कितना हुआ वो 3h by 4, and this is why your answer will be 3h by 4. Yes. अरे तुम्हें सांगितलं होता करेक्ट. Your answer is correct. Balloon is going upward with velocity 12 meters per second. It releases the packet when it is at a height of 65 meters from the ground. How much time the packet will take to reach the ground? Important problem. एक मस्त प्रॉब्लम है, बोला क्या ये प्रॉब्लम। ये देखो ये बलून ऊपर चलता है, इसकी कुछ वेलोसिटी है, कितनी उसकी वेलोसिटी, इट इज 12 मीटर्स पर सेकंड, 12 मीटर्स पर सेकंड। और ये ग्राउंड 65 मीटर्स पे है, तब ये पैकेट नीचे गिरता है। पर पैकेट बलून से नीचे गिरने से पहले क्या उसकी स्पीड 12 मीटर्स पर सेकंड मानी जाएंगी या नहीं? क्या वो रेस्ट पे है ऐसा तुम लोग कहेंगे ना? यू विल से द वेलोसिटी ऑफ पैकेट बिफोर ड्रॉपिंग is same as that of velocity of balloon, and therefore u velocity of a packet is equal to 12 meters per second. Will you tell me whether it is positive or negative? It is positive. ये ऊपर जाती है इसलिए पॉजिटिव। ओके, आफ्टर ऑल जब ये पैकेट नीचे आने वाला है, पहले मतलब उसकी जो स्पीड है हम लोग अभी तो इधर मानते हैं, मतलब ऊपर फेंके जैसा है, पर आखिरी में तो ये इधर ऐसा आने वाला है ना। तो व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल यहां पर था, फाइनल यहां आ गया, तो कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में? ये तो 65 है। तो यस इज इक्वल टू 65 मीटर। क्या ये डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे? ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा निगेटिव, क्योंकि ये नीचे आता है और नीचे का जो कुछ क्वांटिटी, नीचे आने वाली जो क्वांटिटी है, नीचे वाले डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव लेते। यस इट इज। अब मुझे यू पता है, मुझे एच मतलब डिस्प्लेसमेंट पता है, मुझे टाइम निकालना है, निकाल सकता मैं अब टाइम, और एक्सेलरेशन पता है। सो मेरा फॉर्मूला है सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो डिस्प्लेसमेंट है -65, यू है 12, ये टाइम मालूम नहीं, जी 10 है, 10 लेने को बोला है, मतलब ये होगा मेरा 5। क्यों समय बर्बाद करूं मैं, है ना। और ये टी स्क्वायर, क्या मैं ये 5 टी स्क्वायर -20 -65 इज इक्वल टू 0 ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले सकता? अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स ऑफ टी विल बी वेरी इजी, यू नो वेरी वेल। How can it be found? The formula for finding roots t is equal to -b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by twice a। ये होता है t is equal to -b plus or minus root of b square minus 4ac divided by twice a। p की वैल्यू -12, तो ये होता +12।
ये प्लस और माइनस एज इट इज, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स 144, 4ac, 4 और ये तो 20 हुए, 20 इंटू 65, ये तो 130 के ऊपर एक जीरो, मतलब 144, ये प्लस आने वाला है क्योंकि ये साइन माइनस, ये भी साइन माइनस, तो हो जाएगा प्लस एंड डिवाइडेड बाय 10। 144 प्लस 1300, इनके एडिशन हो जाएंगे 1444। तो व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1444? बोलो। 28 क्या 38? 38 प्लस 12, ये हो जाता है कितना? 12 प्लस 38, ये कितना? 50, ये डिवाइडेड बाय 10, और ये मिलता है आंसर 5 सेकंड्स। नेक्स्ट नाउ, स्टोन प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप from the ground reaches a height y in its path at time t1 seconds and after further t2 seconds reaches the ground. The height y is equal to, let body is projected from here and ये वापस आया, पर ये हाइट y पर समय t1 है और आगे का समय t2 है, तो फ्लाइट का समय है t1 प्लस t2। मतलब मुझे खाली इधर से या इधर से एक समय चाहिए, तो ले लो, मुझे t डैश इज इक्वल टू t1 प्लस t2 बाय 2। तो पूरी हाइट जो है मुझे मिल गई है h इज इक्वल टू 1/8 gt स्क्वायर, gt मतलब ये वाला, तो ये t1 प्लस t2, ये ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये टोटल अगर t1 प्लस t2 है, पर ये यहां से यहां तक, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक समय है टोटल माइनस t1, मतलब t2 माइनस t1, तो ये होता है लेट t डबल डैश इज इक्वल टू t2 माइनस t1। अब मुझे खाली इधर से उधर जाने के लिए या उधर से नीचे आने के लिए बस इतना ये समय चाहिए, एक तरफ जाना नहीं तो वापस आना, तो वो समय है मेरा t डबल डैश इज इक्वल टू t2 माइनस t1 बाई 2। तो अब समय है तो h निकाल पाऊंगा ना मैं, तो मेरा h होगा h डैश। सो h डैश अगर लेते हैं तो h डैश इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर होता है ना, और हमारा t कौन है, तो t डबल डैश है। t डबल डैश मेरा कितना है, देखो ये 1/2, ये 2 का स्क्वायर 1/4, ये g एज इट इज, एंड t2 स्क्वायर, सॉरी t2 माइनस t1 ब्रैकेट स्क्वायर। दोस्तों मेरा y है h माइनस h डैश, h है, h कितना है, h है मेरा 1/8 gt स्क्वायर t1 प्लस t2 ब्रैकेट स्क्वायर, इधर 1/8 g t2 माइनस t1 ब्रैकेट स्क्वायर। इसमें कॉमन निकल सकता है 1/8 g, स्क्वायर कर लो इसका, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2 t1 t2, इधर माइनस t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर t1 स्क्वायर, लेकिन इसके कारण ये बन जाएगा t1 स्क्वायर माइनस 2 t1 t2, और इसके कारण ये हो जाएगा प्लस 2 t1 t2। दोस्तों ये जो है t1 स्क्वायर t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर t2 स्क्वायर 2 t1 t2 मतलब 4 t1 t2, एंड ये बनता है मेरा y इज इक्वल टू 1/8 g, 2 और 2 4 t1 t2
ये 4 to the 8 and this is what half G T1 T2. This is how your answer दोस्तों। चलो दोस्तों, इसी के साथ आज के ताजा समाचार खत्म करते हैं। मिलेंगे कल इसी वक्त इसी जगह। टिल दैट ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।